Hello everyone, welcome to the class. Good afternoon everyone. Good afternoon. Please tell me if I'm audible and visible. Hello everyone, hello. Welcome to Unacademy Plus. Unacademy Plus पे आप सभी का स्वागत है. I welcome you all to Unacademy Plus. We'll wait for a few more seconds for other students to join the class. सभी students join कर ले class को, इसीलिए हम थोड़ा सा और wait करेंगे. We are waiting for a few more seconds so that other students they join the class. Today's class is on how to prepare history optional. आज की क्लास है history optional कैसे prepare करना है. But before that, we should understand the syllabus of history optional. उससे पहले history optional का syllabus जानना बहुत जरूरी है. So we are going to focus first on syllabus. How many of you have history optional? आप में से कितने बच्चों के पास history optional है? I am starting a poll. How many of you have history optional? Mark in the poll. If you have history optional, say yes. If you do not have history optional, say no. Okay, so 57% are saying yes, 43% are saying no. %56 are saying yes. 62% are saying yes. History optional. How many of you have history optional? 62% से ऊपर बच्चे yes बोल रहे हैं. All right. So today's class is on history optional. Even if you have not picked up any optional, अगर आपने कोई optional pick नहीं किया है, then also this class is beneficial for all of you. तब भी ये class आपके लिए important है. Why? Because it will give you an insight into history optional. आपको history optional में एक insight देगी. This class is going to give you an insight on history optional, right? So you can make a better decision. अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं पिकअप किया है फिर भी ये क्लास आपको हेल्प करेगी क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल चुनना है या नहीं. ओके, यू विल गेट अ बेटर इनसाइट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस क्लास. ऑलराइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ऑप्शनल, जब हम किसी भी ऑप्शनल की बात करते हैं वी शुड नो द सिलेबस. हमें सिलेबस पता होना चाहिए, राइट? बिफोर डिस्कसिंग द सिलेबस आई एम डेडिकेटिंग 5 मिनट्स टू आंसर योर डाउट्स. शुरू के 5 मिनट्स में आपके डाउट्स आंसर करूंगी. ओके, the starting 5 minutes I will take to answer your doubts. Then the next 20 minutes I will take to explain the strategy. Okay, next 20 minutes में strategy explain करूंगी. And then the next 15 minutes I am going to take your doubts. Next 15 minutes में मैं आपके फिर से doubts लूंगी. ठीक है, clear? This particular strategy for this class, for today's class is clear. आज की क्लास की स्ट्रैटेजी क्लियर है? Everybody agrees with this strategy for today's class? First 5 minutes your doubts, then next 20 minutes strategy we will discuss for history optional, and then the next 15 minutes your doubts. Okay, clear? Now I'm taking your doubts. You can ask your questions. Question tab is open. क्वेश्चन टैब हमने ओपन अप कर दिया है. क्वेश्चन पूछिए, आपके डाउट्स लिए जाएंगे. फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स आई एम लुकिंग एट द टाइम. पहले 5 मिनट आपके डाउट्स लिए जाएंगे. हिंदी मीडियम के लिए बताओ. अब्बास क्या बताओ? हिंदी मीडियम के लिए क्या बताओ? मैम, व्हाट इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट? व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल? फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ, राइट? दूसरे लोगों में क्यों इंटरेस्टेड रहते हो आप लोग? My optional or what am I doing will affect your studies or not? Yes or no? No, right? मेरा ऑप्शनल या फिर मैं क्या कर रही हूँ ये आपको अफेक्ट करना चाहिए? नहीं. आपको क्या चाहिए इस वक्त कि आप आओ क्लास, नॉलेज लो, अपनी पढ़ाई करो, राइट? ऐसे नेबर्स की तरह मत बनो, एक दूसरे की लाइफ में झांक रहे हो. ठीक है, क्लियर?
मैम वाई aren't you Hindu ticketing not been uploaded in academy? मोहम्मद 1 day का डिले हुआ है और आप लोग एकदम बेचैन हो गए. That shows that self study is not going on. हिस्ट्री ऑप्शन को कैसे प्रिपेयर करें? अब्बास खान, प्लीज बी फोकस्ड इन द क्लास. आई हैव टोल्ड यू next 20 minutes I am going to discuss the strategy on history option only. Right now I am taking your doubts if you have any other doubts, क्योंकि बीच में बड़े अटपटे डाउट्स पूछते हैं बच्चे, तो अभी अपनी सारे मन की भड़ास निकाल लो. ठीक है. संकर्षण, प्लीज रिफ्रेश योर नेट. अपना नेट रिफ्रेश करें. आई हैव ओपनड अप द कमेंट्स क्वेश्चंस टैब. उसको आप जरा यूज करो डाउट्स पूछने के लिए. एनी अदर डाउट मैम? मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स क्वेश्चन आते हैं, कैसे टैकल करें? दुर्गेश, इफ यू आर, अगर आप ओपिनियनेटेड हो, मतलब कोई चीज पढ़ के आपको व्यू पॉइंट बनाना आता है अपना, जो कि हर ह्यूमन को आता है. हम किसी की बात सुनते हैं, किसी के फैमिली इश्यूज सुनते हैं, अपने एक व्यू पॉइंट बनाते हैं ना. किसी की कोटेशन, किसी का कुछ सेइंग पढ़ी तो अपने व्यू पॉइंट बना सकते हैं ना. वही करना है. ठीक है. जब आप गॉसिप करते हो तो व्यू पॉइंट बनाते हो ना. ऐसे ही जब किसी की कोटेशंस या सेइंग्स हम पढ़ते हैं तो अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करना होता है. ठीक है. मैम, if someone have no interest in history and consider history as optional, so is that tough? Sarita, if you have, even if you have no interest in history, then also UPSC doesn't care about it, right? Why? Because it is there in GS paper 1. You have to study it anyhow. Even if you do not pick up history optional, then also you have to study history. But the benefit of picking up history optional is that your GS paper 1 will be automatically prepared. GS paper 1 ना आपको automatically prepare हो जाएगा. History optional का यही benefit है. Okay, but if you do not want to pick up history optional and on GS paper 1 is heavy enough, then leave it. अगर आपको लगता है GS पेपर 1 की जो हिस्ट्री है वो ही बहुत काफी है, तो फिर आप हिस्ट्री ऑप्शनल मत पिक करो, GS पेपर 1 पे फोकस करो. ठीक है. नाउ धीरज, लास्ट 10 years questions can be useful. Yes, first start with last 5 years previous year question paper, then only go to last 8 years, then last 10 years. ठीक है. कोट किसने बोला है वो पता नहीं होता. इज इट नेसेसरी टू नो द एग्जैक्ट नेम? दुर्गेश, यस, इट इज नेसेसरी टू नो द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड देयर कोट्स. महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, नेहरू जी, ये जो आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उनके कोट्स तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए. ठीक है. उतना तो आपको याद होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है हमारी हिस्ट्री में. ठीक है. मैम, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का कोई चैनल या क्लास है क्या मैम? अजय दास, यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस हैं अनअकैडमी प्लस पर मैथ्स ऑप्शनल के लिए, और अगर आपको अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है तो आपको विनीता मैम की क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी मैथ्स ऑप्शनल की. ठीक है. डू यू सजेस्ट एनी कोर्स लाइक सेल्फ स्टडी हिस्ट्री? नितेश, सेल्फ स्टडी हिस्ट्री आई एम गोइंग टू टेल यू वेबसाइट इन दिस क्लास. ओके. Fear of history because some are saying that history is so vast. Vaibhav, history is always vast, but UPSC syllabus is very definite. Some are saying ये some कौन है, किसकी सुन रहे हो? When you decided to step into UPSC, did you listen to anybody else? That was your personal decision, right or wrong? जब आप इसमें आए, क्लास में आपने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू करी, तो क्या आपने किसी के बारे में सोचा? नहीं ना, आपका खुद का डिसीजन था ना, राइट? So when you have taken this decision of entering into UPSC, then nothing else matters. Who are these some? They will not stand with you when you clear this exam and when you top this exam. They are not going to do anything. They are not going to make any difference. That is your victory or your achievement, right? Clear? समझ आ गई बात? इसलिए सिलेबस की बात करने जाओ तो यूपीएससी के बहुत सारे महानतम सड़कों पे आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे बहुत वास्ट सिलेबस है, हो ही नहीं पाएगा. तो किसी की सुननी नहीं है. पुट फिंगर ऑन योर ईयर्स एंड जस्ट प्रिपेयर. ओके. हिस्ट्री ऑप्शनल इज नॉट वास्ट बिकॉज इट हैज लिमिटेड डेफिनेट सिलेबस. आपको पीएचडी तो करने के लिए बोलता ही नहीं है यूपीएससी नेवर आस्क यू टू डू पीएचडी. ओके. बैकअप ऑप्शन रखना है क्या? साहिल, बैकअप ऑप्शन is kept by those who are not confident in their own selves, who think they are weak, average, and they cannot complete one exam or one goal without failing, right? So if you think you are amongst the weak or the average, then you can keep a backup option. But if you are confident that you are going to surely crack this exam in one attempt, next year your name will be in the newspaper. If you are confident enough, then go for it.
without keeping anything else, without thinking of anything else. एक बोट पे ही आप सवार हो सकते हो. You can only sail on in one boat. You cannot keep your legs in two boats and plan to cross the ocean, right? अभिषेक प्रताप सिंह इज सेइंग मैम रिफ्रेश योर नेट. स्पीड सही है भाई यहाँ पर, ठीक है. आप अपना नेट रिफ्रेश करें जरा. जो स्पीड स्लो होती है तब हम क्लास नहीं करते हैं, क्लास हम शुरू ही नहीं करते हैं. when the speed is good we start the class. Okay, so please refresh your net. मिडिवल इंडिया का हिस्टोरियन व्यू पॉइंट आंसर करना चाहिए. दुर्गेश, लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर विल हेल्प यू. ओके. निताक्षी, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का चैनल तो नहीं पता, सर्च करके ही बताना पड़ेगा. यस गायत्री, dates and year are important. Then what is the use of history if you do not know the years? Okay. Okay, now let us start the class. All your doubts have been solved. 5 मिनट से ऊपर ही हो गया, 7 मिनट हो गए. Now let's start the class. Okay, class शुरू करते हैं. Clear everyone? So do not be scared of anything. This exam you are going to clear it for sure. Okay? आप ये एग्जाम क्लियर करने वाले हो, बस थोड़ा सा विश्वास रखो. You have to keep faith in yourself. Nobody else is going to sail you through the ocean of UPSC. Only you can help yourself. And God helps those who help themselves. अगर आप सोचते हो बैकअप रखें, ये करें वो करें, इसका मतलब अपने ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है. बट अगर आप सोचते हो अगले साल न्यूज़पेपर में आप ही का नाम आना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता ये क्लियर करने से. ठीक है? Clear? So let's start. Now first let me tell you the syllabus, because there are some people who misguide students by saying history is very vast. You cannot complete history. कुछ लोग हैं जो डराते हैं बच्चों को बोलकर कि हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है, तुम कर ही नहीं पाओगे, तो 5-6 महीने लग जाएंगे खत्म करते करते. नो, हिस्ट्री इज वेरी लिमिटेड एंड इट इज देयर इन जीएस पेपर 1 आल्सो, राइट. कुछ अलग से कुछ इतना ज्यादा हाई तौबा मचाने वाली बात नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है. जीएस पेपर 1 में भी है. सो इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल, ऑटोमेटिकली होल ऑफ जीएस पेपर 1 इज प्रिपेयर्ड, लिविंग बिसाइड ज्योग्राफी. ओके, जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी है, उसे छोड़ के पूरा आपका तैयार हो जाएगा जीएस पेपर 1 इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल. सो वी मस्ट फोकस ऑन द सिलेबस फर्स्ट. पहले सिलेबस पे फोकस करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, इट इज डिवाइडेड, दिस ऑप्शनल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज एंशिएंट हिस्ट्री. ओके, then the second part is known as medieval history. Second part को हम बोलते हैं medieval history. Clear? And third part is known as modern history. Third part को हम बोलते हैं modern history. Basic 3 parts में history divided है. In basic 3 parts history is divided. Okay, clear everyone? Now when we talk about the ancient history, जब हम ancient history की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न में वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा. मैंने यहाँ पर कहीं नहीं लिखा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ओके, बी वेरी फोकस्ड इन द क्लास. नोवेयर इन द स्लाइड आई हैव रिटन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. इट इज इंक्लूसिव ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, तो क्लास में ना थोड़ा सा सीरियस रहना. आर्ट एंड कल्चर इज नॉट अ सेपरेट टॉपिक. अब्बास, okay, if you have studied syllabus of UPSC you will know art and culture is not a separate topic. It is present in all these parts. ठीक है, तो प्लीज ये अपने मन से ना थोड़े से आपके वो है मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सिलेबस अच्छे से बच्चे पढ़ते नहीं है, तैयारी में कूद जाते हैं. आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इसी 3 के सब पार्ट्स हैं, याद रखना. ठीक है, in ancient history, that is why I recommend everyone again and again and again go through the syllabus, because students they falter in UPSC because they do not have strong hold over the syllabus, right? Ancient history में you have to study the prehistoric period. Ancient history में आपको पढ़ना है सबसे पहले prehistoric period, and if possible please make this flow chart with me in the class. क्लास के साथ साथ ये फ्लो चार्ट आप भी बना लो, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो, अगर आपको लगता है कि आपको सिलेबस समझने की जरूरत है. ठीक है, सो प्री हिस्टोरिक पीरियड, देन वी हैव हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर हमारे पास आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन. ऑल ऑफ दिस वी स्टडीड इन प्रीलिम्स. ये सब प्रीलिम्स में है. इवन योर प्रीलिम्स विल बी प्रिपेयर्ड, द हिस्ट्री पोर्शन इन प्रीलिम्स विल बी प्रिपेयर्ड इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल. हड़प्पन सिविलाइजेशन वी हैव. देन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री. साउथ इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स हमें पढ़ने होंगे. We have to study iron age पढ़ना होगा. Then Vedic age will come. ये सारे जब आप नोट्स बनाने लगोगे 2-2 पेज नोट्स बनेंगे. If you start making notes Vedic age, 2 pages of notes you get. Okay, or iron age 2-page notes, Vedic age 3-page notes, Harappan civilization 4-page notes, prehistoric period 2-page notes. Right? This is the
लेंथ ऑफ दीज टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स हैं, आप डरा मत करो, डू नॉट बी स्केयर्ड, दिस इज नॉट पीएचडी। यूपीएससी हैज सेड हिस्ट्री इज वेरी लिमिटेड इन आवर एग्जाम। यूपीएससी ने खुद कहा है कि हिस्ट्री को हम वास्ट नहीं बनाते, बहुत लिमिटेड करते हैं, ठीक है। यूपीएससी नोस दैट डेप्थ ऑफ हिस्ट्री इज वेरी, you can say it's very deep. So in order to make sure the student does not end up doing PhD, syllabus is defined. Now the student PhD कर ले ऑप्शनल में, इसलिए सिलेबस को डिफाइन किया है। सो वी हैव वैदिक एज, देन वी हैव वी हैव प्री मौर्यन पीरियड, फिर हमारे पास आ जाता है प्री मौर्यन पीरियड, ठीक है, क्लियर एवरीवन। देन आफ्टर प्री मौर्यन पीरियड वी हैव मौर्यन एम्पायर, फिर हमारे पास आता है मौर्यन एम्पायर, ऑलराइट। देन वी हैव इंडिया आफ्टर मौर्यस, जब मौर्यस चले गए उसके बाद इंडिया का क्या शेप था, क्या स्थिति थी, इंडिया आफ्टर मौर्यस, ओके। देन कम्स एज ऑफ गुप्तास, उसके बाद हम गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे। व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑन गुप्ता पीरियड ना, यू विल गेट 5 पेज नोट्स, 5 पेज नोट्स आर सफिशिएंट ऑन गुप्ता पीरियड, ओके। एंड देन कम्स आफ्टर गुप्ता पीरियड के बाद आप पढ़ोगे हर्षवर्धन का रूल जो हुआ और छोटे छोटे जो एम्पायर थे, हर्षवर्धन रूल एंड स्मॉल एम्पायर्स, ओके। दिस इज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यही है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कितना लिमिटेड है। एंड आई विल जस्ट मार्क which topic is in prelims also, GS paper 1 also. This is in prelims also and GS paper 1 also. Again prelims and GS paper 1, okay. Then again prelims and GS paper 1, again prelims and GS paper 1. It is also present in prelims and GS paper 1. Post modern period, yes, GS paper 1, not in prelims but GS paper 1. Mauryan Empire in prelims and GS paper 1. India after Maurya is not present in prelims, but it is present in GS paper 1. Gupta period is present in prelims also and GS paper 1 also. Harshvardhan Empire, prelims also and GS paper 1 also. So automatically, if you have your, the history optional, your prelims syllabus and GS paper 1 syllabus will be automatically prepared. आपका prelims और GS paper 1 भी साथ साथ prepare होता चला जाएगा. How many days will you take to finish these topics? आपको कितना टाइम लगेगा ये टॉपिक्स फिनिश करने में? यू विल रिक्वायर, इफ यू आर अ सीरियस डेडिकेटेड स्टूडेंट, अगर आप बहुत सीरियस और डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 3 वीक्स लगेंगे, मैक्स टू मैक्स। इफ यू आर अ बिगिनर 3 वीक्स में आप ये कवर कर लोगे। इन 3 वीक्स यू विल बी इन अ पोजिशन टू कवर इट। क्लियर एवरीवन, समझ आ गई बात? ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? दिस मच इज क्लियर और नॉट? टेल मी। ओके, this much you will, if you are a beginner, and if you are not a beginner, अगर आप beginner नहीं हो, yes, from zero level, sorry, okay, if you are a beginner from scratch, you are studying ancient history, you will take 3 weeks to cover ancient history, these topics. आपको 3 weeks में ये cover हो जाएगा अगर आप beginner हो और एक बहुत ही serious student हो, ठीक है। if you are a beginner serious student and you are focused only on UPSC and nothing else, ठीक है, क्लियर। अगर आप एक साथ 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 more exams with UPSC, then you will be distracted and you will take a lot of time. But if you are only focused on UPSC, 3 weeks is enough to cover entire ancient history, these topics. यही पढ़ने हैं। Ancient history is very vast, but that is not for UPSC. Only these topics you have to study. ठीक है, I am going to tell you the books. Don't worry. First, write down the syllabus. ठीक है, मैं आपको बुक्स बताऊंगी, टेंशन मत लो, बट पहले सिलेबस लिख लो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है, सो दैट यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड इन द जर्नी। क्लियर, समझ आ गई बात इतनी? ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद मिडिवल। हैव यू ऑल नोटेड दिस डाउन? ये सब लिख लिया है सबने? शुड आई स्किप दिस स्लाइड, आगे बढ़ जाऊं? फिर मत बोलना कि मैम पीछे दिखाना फिर से। प्लीज नोट दिस स्लाइड और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, गिविंग यू 5 seconds टाइम। मैं आपको 5 seconds का टाइम दे रही हूं, जल्दी से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नाउ वरुण इज आस्किंग बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ना है या नहीं? वरुण, इन वैदिक एज यू विल ऑटोमेटिकली इन द चैप्टर ऑटोमेटिकली यू विल स्टडी रिलीजन। ठीक है, फिर से ये वही बात हो गई, आपको क्लियर नहीं है सिलेबस, यानी कि यूपीएससी का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा आपने। सी, वैदिक एज जब पढ़ोगे ना, व्हेन यू विल स्टडी वैदिक एज ना, automatically in Vedic age there is art and culture also. I have told you na, art and culture, religion, everything is a part of these topics. These are broad disintegrations of history. हिस्ट्री को ब्रॉडली डिवाइड किया गया है, चाहे आपका
रिलीजन हो, आर्ट एंड कल्चर हो, आर्किटेक्चर हो, वो सब इसी के अंडर आता है। जब आप चैप्टर खोलोगे तब मिलेगा आपको। वैदिक एज क्या है? इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कल्चर, फेस्टिवल, फेयर, एटसेट्रा, राइट? एवरीथिंग इज देयर इन दीज चैप्टर्स ओनली, ऑल राइट, दीज टॉपिक्स ओनली। तो अलग मत समझा करो। स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्लियर ऑन द सिलेबस, दे थिंक दैट आर्ट एंड कल्चर इज समथिंग एल्स, religion is something else, architecture is something else. No, it's a part of ancient history only. It will be given in the chapter itself. Okay, clear? समझ आ गई? So now I am taking another slide. Now let us understand the syllabus of medieval Indian history. medieval history का syllabus जरा देख लेते हैं. Let's go through medieval history syllabus. Okay everyone, ठीक है, शुरू करें? शुरू करते हैं. Now when we study medieval Indian history, that syllabus is, syllabus क्या है इसका? First you have to study early medieval period. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इन सिलेबस इज अर्ली मिडिवल पीरियड. देन यू हैव टू स्टडी दिल्ली सल्तनत. फिर आपको पढ़ना को, दिस इज द सिलेबस आई एम टेलिंग यू, प्लीज नोट डाउन द सिलेबस. दिल्ली सल्तनत, स्पेशली द 13th and 14th सेंचुरीज. जो 13th और 14th सेंचुरीज है वो आपको पढ़नी है. देन कम्स द पोस्ट सल्तनत पीरियड. सल्तनत, दिल्ली सल्तनत एंड हुआ उसके बाद का पीरियड. You know, post sultanate means after Delhi Sultanate got ended, that period. Okay, post Sultanate period. Then you have to study the age of Vijayanagar, and Bahmanese empire. Okay, now here only 2 centuries you have to study, that is 15th and 16th centuries. सिर्फ 2 सेंचुरीज के बारे में पढ़ना है, 15th and 16th. आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ द बुक्स, डोंट वरी. ओके, देन यू हैव टू स्टडी, फिर आपको पढ़ना है मुगल एम्पायर. देन यू विल स्टडी मुगल एम्पायर. देन यू हैव टू स्टडी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. देन यू हैव टू स्टडी एंट्री ऑफ यूरोपियंस. अब ये फॉरेनर्स हमारी कंट्री में कैसे घुसने शुरू हुए, पोर्टुगीज, डच, ऑल दी स्टार्टेड एंटरिंग इनटू आवर कंट्री. एंट्री ऑफ यूरोपियंस. देन यू हैव टू स्टडी ब्रिटिश एक्सपेंशन. फिर आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन पढ़ना है, भारत में ब्रिटिश कैसे एक्सपैंड किया उन्होंने अपना ट्रेडिंग. ओके, एंड देन यू हैव टू स्टडी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. फिर आपको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है. ठीक है, नाउ इन दिस पार्ट, ये जो पार्ट है आपका अर्ली मिडिवल पीरियड, दिस अर्ली मिडिवल पीरियड, फ्रॉम दिस पार्ट टिल एज ऑफ विजयनगर एम्पायर. आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन, कल्चर, दैट यू हैव टू प्रिपेयर. ओके, आपको इस पार्ट से इस पार्ट तक फोकस करना है रिलीजन पर. यू हैव टू फोकस ऑन रिलीजन, आर्किटेक्चर, ओके, एंड कल्चर, बिकॉज क्वेश्चंस फ्रॉम last 8 years क्वेश्चन पेपर ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, दे आर फोकसिंग ऑन दिस पीरियड ओनली. पिछले 8 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे हिस्ट्री ऑप्शनल के, तो यूपीएससी इस पीरियड का, अर्ली मिडिवल पीरियड से विजयनगर एम्पायर तक के रिलीजन, आर्किटेक्चर और कल्चर पे बहुत ध्यान दे रहा है. यूपीएससी इज फोकसिंग अ लॉट एंड फ्रेमिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द लास्ट 8 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑन दी रिलीजन, आर्किटेक्चर एंड कल्चर बिटवीन अर्ली मिडिवल पीरियड टिल एज ऑफ विजयनगर एम्पायर. ओके, मुगल एम्पायर को थोड़ा बैक सीट पे रख दिया है उन्होंने. मुगल एम्पायर हैज बीन केप्ट ऑन द बैक सीट. Okay, and this period has become very important for history optional. Now I am going to tell you which topics are there in prelims and GS paper 1 also. Mughal Empire is there in prelims and GS paper 1. The decline of Mughal Empire is also there in prelims and GS paper 1. Entry of European administration, British expansion, it is there in GS paper 1 and prelims also. Post Sultanate period is not there. Yes, Delhi Sultanate is there in prelims and GS paper 1 also. Only these topics are there in prelims and GS paper 1. Clear everyone? इतना सबको clear हो गया? This much is clear. Please tell me if this much is clear. Should I rub this slide? इस slide को rub कर दे? All right. Everybody has taken the screenshot. सबने screenshot ले लिया? ठीक है. ठीक है. Now comes the modern history. अब बात आती है modern history की. Now comes the modern Indian history. और ठीक है, अब बात आती है modern Indian history की. Clear? So in modern history you have to study. यहां पर आपको क्या पढ़ना होगा?
द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं सब, राइट, वी ऑल नो दैट. Then after Indian freedom struggle, what you have to study? You have to study pre-Congress nationalist organization. अब फ्रीडम स्ट्रगल में जितनी भी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तैयार हुई थी वो आपको पढ़ना है. Then Indian National Congress you have to study from 1885 to 1905. ठीक है. Then you have to study early nationalism. हमारी कंट्री में नेशनलिज्म की स्टार्ट कैसे हुई थी, राइट, clear. Then you have to study rise of militant nationalism. Give one example of militant nationalism जो fail भी हुआ था, which failed also. Very famous example of militant nationalism which also failed. It is revolt of 1857, first war of independence. Okay, clear. उसके बाद आपका आता है, इसके बाद आपका आता है rise of revolutionary terrorism. ठीक है. Now rise of revolutionary terrorism, इसके काफी सारे examples. There are many tribal wars which were fought, right? So that can be attributed to rise of revolutionary terrorism. Then after this we have to study Swadeshi movement. इसके बाद हमें पढ़ना है स्वदेशी movement. Then we have to study सूरत split. सूरत में जो split हुआ था कांग्रेस का वो हमें पढ़ना है. सूरत split of year was, tell me in the comment section, year was सूरत split कब हुआ था? Anybody who has, yes, very good Sohail, very good. It was 1907. Okay, these years are important for prelims. I am going to tell you how to revise the years. Don't worry. अभी book list भी बतानी है, ठीक है, इसे टेंशन मत दो. Then after this we have to study सूरत split के बाद हमें पढ़ना है Indian Councils Act. This Indian Councils Act is also there in polity, historical background. Polity का जो M लक्ष्मी का चैप्टर है उसमें भी है. Indian Councils Act of 1909. Very good Varun. Then we have to study Muslim League. फिर हमें मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ना होगा. The year of formation, aspirations of Muslim League, right? Or you have to study the objective of Muslim League, the leaders in Muslim League. The famous leader of Muslim League was, सबसे फेमस लीडर कौन थे मुस्लिम लीग के, बताएं जरा. द फेमस लीडर मुस्लिम लीग के, आगा खान. ओके वरुण, यस, वेरी गुड. जिन्ना, ऑल राइट, वेरी गुड. नाउ सेकंड यू हैव टू स्टडी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड, नाउ हियर यू विल स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स रिलेशन विद आवर फ्रीडम स्ट्रगल. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या असर हुआ, इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन आवर फ्रीडम स्ट्रगल. Then you have to study about Gandhi and his thoughts. गांधी जी और उनके thoughts, उनके quotes, quotations आपको पढ़ने हैं. Then Rowlatt Act. फिर आपको क्या पढ़ना है, Rowlatt Act पढ़ना होगा. These are topics. This is not a chapter in itself. ये आधे पेज का टॉपिक है. This is a half page topic. Gandhi and his thoughts, 1 page topic. First World War, freedom struggle, it's a 3 page note. ओके, 3 पेज आपके जो नोट्स बनेंगे ना 3 पेज के बन जाएंगे. मुस्लिम लीग के बारे में 1 पेज में नोट बन जाएगा. यू विल मेक नोट्स इन 1 पेज. इंडियन काउंसिल एक्ट is, you have to understand it very clearly, so it will require 4 to 5 pages of note making. Okay, but Rowlatt Act तो आधे पेज का एक्ट है. It is just an act which you have to study. Why it was incorporated, who incorporated it, what was the objective of this act. These are the things you have to study. Don't be scared. बहुत easy है, छोटा है, ठीक है, clear. Then after Rowlatt Act you have to study the non cooperation movement. Rowlatt Act के खिलाफ non cooperation movement तैयार किया गया. Then emergence of communist. Write down this is a part of syllabus. Emergence of communist. Then comes Subhash Chandra Bose. Emergence of Subhash Chandra Bose, Indian National Army. सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है आपको. Then you have to, this is again 1 page में आप पढ़ लोगे इसको, 1 page note. Then you have to study Simon Commission. Simon Commission यहाँ पर आता है, उसके objectives of Commission. Why did it come to India? Was it a success or was it a failure? And then Nehru report हमें पढ़ना है. उस पे जवाहरलाल नेहरू जी की क्या रिपोर्ट थी. Okay, Nehru report we have to study. Then after this we have to study various peasant movements. जितने भी farmers थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया. All the farmers they
protested against Britishers. Okay, peasant movements we have to study. Then civil disobedience movement we have to study. Then we have to study the Muslim League and communalism. फिर कम्युनलिज्म बढ़ने लगा हमारी कंट्री में, हमें वो पढ़ना है. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स वी हैव टू स्टडी. राइट, क्लियर. देन क्विट इंडिया मूवमेंट हमें पढ़ना है. क्विट इंडिया मूवमेंट तो सबने 8th क्लास में पढ़ा है. एवरीबडी हैज स्टडीड अबाउट दिस इन 8th क्लास. देन वी हैव टू स्टडी वेवल प्लान. फिर प्लान आता है आपका. एंड देन इंडिपेंडेंस एक्ट. फिर आता है आपका इंडिपेंडेंस एक्ट एंड पार्टीशन. क्लियर. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस, ये जो आपका सिलेबस है, इसमें वर्ल्ड वॉर 1 भी पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर 2 भी पढ़ना है. आपको वर्ल्ड वॉर्स की जानकारी होनी चाहिए. यू शुड हैव द इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वॉर्स. क्लियर एवरीवन, इतना सबको समझ आ गया. एंड ऑल ऑफ दिस पार्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री आर देयर इन प्रीलिम्स आल्सो, इन जीएस पेपर 1 आल्सो. ये जो सारे टॉपिक्स है ना मॉडर्न हिस्ट्री में, ये सारे के सारे प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1, एवरीथिंग कवर्ड इन पेपर 1. सो इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल, then automatically your GS paper 1 is going to be prepared. Don't worry about it. आपको GS paper 1 को देखने की भी जरूरत नहीं है ज्योग्राफी के अलावा. In GS paper 1, if you have history optional, then in GS paper 1, no need to go for history or art and culture or anything else. Focus only on geography and GS paper 1 will be cleared with good marks. आपका GS paper 1 बड़े अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा. बस ज्योग्राफी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो सारा कवर्ड है. ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑल विल बी कवर्ड. क्लियर एवरीवन, इतना सबको क्लियर हो गया तो मुझे बताओ. इफ दिस मच इज क्लियर प्लीज टेल मी. ऑल राइट, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजी ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. सिलेबस इज क्लियर. अब सिलेबस क्लियर हो गया. अब अगर हम हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करें, हाउ मेनी पेपर्स आर देयर इन ऑप्शनल? ऑप्शनल में कितने पेपर्स होते हैं यूपीएससी में, जरा मुझे बताएं. 2 पेपर्स, राइट. वी हैव 2 इन ऑप्शनल. यस, 1 पेपर इज अबाउट दैट इज इंक्लूडेड. पूना पैक्ट के थोड़ी है, पॉइंट्स का तो फैक्ट है, इंक्लूड है, उसको अलग से मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, देखो फिर से ये सिलेबस की समझ की बात हो जाती है. ठीक है, इफ द अंडरस्टैंडिंग इज नॉट क्लियर, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम. ठीक है. नाउ हिस्ट्री ऑप्शनल इज डिवाइडेड इनटू, हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2. ठीक है, paper 1 and paper 2. Paper 1 has 2 sections, section A and section B. Paper 2 में 2 section है, section A, section B. And paper 1 में paper 2 also has 2 sections, section A and section B. ठीक है, clear everyone? This much is clear or not? Please tell me. Now in section A, section A में आपको क्या पढ़ना है? Section A में in paper 1 section A you have to study ancient Indian history. Ancient Indian history. This is in paper 1 section A. Paper 1 section B में you have to study medieval Indian history. Medieval Indian history. That is in paper 2, paper 1 section B. Now paper 2 section A में क्या है? Modern Indian history. Modern history. Okay. 18th century से present तक, अभी तक. ठीक है. Modern Indian history. And paper 2 section B has वर्ल्ड हिस्ट्री. इसमें आएगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, अगेन 18th सेंचुरी से प्रेजेंट तक. ऑल राइट, दिस बाइफर्केशन इज क्लियर. ये बाइफर्केशन क्लियर है, मुझे बता दो. इफ दिस बाइफर्केशन इज क्लियर प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर ये बाइफर्केशन क्लियर है तो मुझे बता दो. ऑल राइट, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, Megha Kumari, even if you are late, you are not that late that you cannot understand the bifurcation. अगर मान लो आप लेट भी हो, फिर भी इतने लेट नहीं हो कि देखकर स्क्रीन पे बाइफर्केशन ना समझ पाओ. ठीक है, these are excuses. All right, so चलो, now let us, I'm going to give you some tips before telling you about the book list. टिप्स मैं बता देती हूँ आपको कौन से यूज करने हैं. ठीक है, क्या यूज करना है टिप्स आपको. First tip is whenever you start answer writing after completing the syllabus, syllabus complete करने के बाद जब आप answer writing शुरू करोगे, timing of writing one answer, timing of one answer should be, आपका ideal time होना चाहिए. Book list I am going to mention, don't worry, 8 to 9 minutes आपका timing होना चाहिए. 8 से 9 minutes एक आंसर का. Second particular tip for you is integrate your resources.
What do you mean by integrating resources? Integrate your resources का मतलब क्या होता है? That you have to study inclusively. That means NCERTs, if you are studying, do after completing each chapter, do solve questions based on that chapter from previous year question paper. You have to integrate all your sources when you study. Okay. Then third tip is, when you make notes, make a combination of points and paragraph. पॉइंट्स और पैराग्राफ का मिक्सचर करके आपको नोट्स बनाने हैं. सिमिलरली व्हेन यू राइट आंसर, इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ पॉइंट्स एंड पैराग्राफ. फोर्थ, फ्लो चार्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट बोनस मार्क्स. अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शन में बोनस मार्क्स चाहिए तो फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे. कंक्लूजन इज अ मस्ट. यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स एंड ईयर्स. डेट्स या ईयर्स है वो याद रखना है. नाउ not all the dates and years you have to remember. Only certain in events. For example, civil disobedience movement, remember the year. For example, quit India movement, remember the year. Simon Commission, remember the year. ये जो major events है ना, all these major events, First World War, okay, Rowlatt Act, only these important years you have to remember. So what you can do is take an A4 size sheet of paper, write over here year and write over here event. Okay, इस तरीके से पेपर को डिवाइड कर लो. टेक एन A4 साइज शीट ऑफ पेपर, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईयर एंड इवेंट. राइट डाउन द इंपॉर्टेंट ईयर एंड द इवेंट, ईयर एंड इवेंट, ईयर एंड इवेंट, एंड स्टिक इट ऑन योर स्टडी टेबल. अपने स्टडी टेबल पे इसको स्टिक कर लो एंड रिवाइज इट डेली. इसको रिवाइज करो. दैट वे यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट द ईयर्स एंड इवेंट्स. क्लियर? इतना क्लियर हो गया? चलो, इतना क्लियर है. All right. Now let us start with the book list. अब book list शुरू करते हैं. Now let's start with the book list. Okay. Now when we start with the book list, first important topic is ancient history. पहला आपका आ जाता है ancient Indian history, right? So the book list for ancient Indian history is, ancient Indian history की book list क्या होगी? First of all, the old NCERTs. हिस्ट्री की 6 से 12 तक की ओल्ड एनसीईआरटीज. Old NCERTs, class 6 to class 12th, old NCERTs you have to study. Okay. Second is IGNOU का material, IGNOU MA material. Okay. The printed notes are available on the IGNOU's website. IGNOU की website पे जाओगे, वहां पर printed notes material जो है आपका available है. Alright. So the printed material is available. जो इसका printed material है वो available है. IGNOU MA material, complete set history. Okay, the name of the material is, write it down, complete set history. This you have to get hold of. And second, these are the basic books which you should have. ये तो basic material हो गया. Now the static book which you should have is A History of Ancient and Early Medieval India by Upinder Singh. I'm writing the name. I'm writing the name of the book, A History of Ancient and Early Medieval India. Ancient and Early Medieval India by Upinder Singh. Okay? समझ आ गई बात? This much is visible. ये visible है. अगर आपके पास कोई क्लास नोट्स अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हो. If you have class notes available, you can study that. But unnecessarily purchasing class notes is not recommended. अगर क्लास नोट्स उसको खरीद लो, but unnecessarily आप परचेज करते हो, वो इम्पोर्ट जरूरी नहीं है. Okay, so this is only for ancient history. This is enough. ये काफी है. Plus solve previous 5 years previous year question paper. Solve them. That is enough. This is enough. Okay, this is enough. बाकी I am telling you, for ancient history this is enough. Okay, इतना काफी है, कुछ और लेने की जरूरत नहीं है. अगर बुक्स लेने जाओगे तो 10 बुक्स है मार्केट में. If you go on purchasing the books, there are 10-20 books in the market. You cannot go on purchasing 10-20 books. All right, 10 से 20 बुक्स तो आप खरीद नहीं सकते ना. क्लियर? तो आपको जो बुक्स बताई जा रही हैं ये सफिशिएंट है. These books are sufficient. भारती वो हिस्ट्री के लिए बताया था. जीएस पेपर 1 में अगर हिस्ट्री पढ़नी है आप, बट अगर आपने वो भी ले लिया तो आपको उपिंदर सिंह नहीं लेनी. इफ यू हैव आर.एस. शर्मा, देन नो नीड टू परचेज उपिंदर सिंह. ओके, क्लियर? अगर आर.एस. शर्मा नहीं है तो उपिंदर सिंह. क्लियर? समझ आ गई बात?
If you do not have R.S. Sharma or you have not started preparing history optional, then Upinder Singh. But if you have R.S. Sharma, then you can skip Upinder Singh. इसको आप निकाल सकते हो. You can remove Upinder Singh if you have R.S. Sharma. Clear? जुना सिंह अगर दलाल मैम की, पूनम दलाल मैम की बुक है तो that is also enough. See, I am recommending one best book. But if you already have a book, then do not purchase this one. अगर आपके पास पूनम मैम की बुक है, R.S. शर्मा है, तो इसको मत खरीदो. राइट? क्लियर? ये भी करना नहीं है. ये भी वन ऑफ दोज बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो. बट अगर आपके पास ऑलरेडी 2 बुक्स हैं, या तो पूनम मैम की बुक है. So if you have Poonam Ma'am's book or R.S. Sharma, then you can ignore this book. But if you are a beginner, you do not have any book, then you can pick up Upinder Singh. Clear everyone? इतना clear हो गया? This much is clear? All right. Now next is, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता भारती, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, सारा सेम ही होता है. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किसका लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से समझ आता है. ओके, कंटेंट में कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता. तीनों ही बुक्स यूपीएससी को दिमाग में रख के बनाई गई हैं. पूनम शर्मा, पूनम दलाल दहिया मैम इज हरसेल्फ अ सिविल सर्वेंट. ओके, क्लियर? इतना समझ आ गया? नाउ कम्स मिडिवल हिस्ट्री. अब बात आ गई मिडिवल हिस्ट्री. बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता. द डिफरेंस इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इफ यू कैन अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑफ द बुक और नॉट, दैट इज द ओनली डिफरेंस. कुछ बच्चों को बहुत इजी लैंग्वेज समझ आती है, कुछ बच्चों को इजी लैंग्वेज में मन नहीं भरता. ओके, वो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स पढ़ना चाहते हैं. दैट इज द डिफरेंस. नाउ फॉर मिडिवल हिस्ट्री, सतीश चंद्रा. मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा you have to purchase. Okay, History of Medieval India by Satish Chandra. The book's name is History of. Even if you have Poonam ma'am's book, that is enough. Okay, अगर आपके पास पूनम मैम की बुक है, फिर enough है. But if you are a beginner from scratch, you do not have any book, then I am recommending. Okay, then IGNOU के notes तो आपको चाहिए ही चाहिए. IGNOU MA notes you should have. Okay, IGNOU के MA notes and BA notes. ठीक है. प्रिंटेड मटेरियल इज प्रेजेंट ऑन इग्नूज वेबसाइट. इग्नू के वेबसाइट में मटेरियल प्रेजेंट है. एंड उपिंदर सिंह, इफ यू हैव उपिंदर सिंह, तो मैंने बताया अगर है. बट इफ यू ऑलरेडी हैव पूनम दलाल मैम्स बुक, देन यू कैन इग्नोर दीस 2 बुक्स. अगर पूनम दलाल मैम की बुक है तो ये 2 बुक्स इग्नोर कर सकते हो. इग्नू के नोट्स पढ़ना, पूनम मैम की बुक. ओके, इफ यू हैव पूनम मैम्स बुक, देन ओनली गो थ्रू इग्नू एमए नोट्स एंड पूनम मैम्स बुक. ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया सबको? Now comes modern Indian history. अब बात आती है modern history की. Modern Indian history. ठीक है. Modern history, it's for this I will recommend one book which you should purchase. एक बुक जो मैं आपको बोलूंगी जो आपको खरीदनी ही चाहिए. Okay, the book's name is From Plassey to Partition. From Plassey to Partition by शेखर बंदोपाध्याय. By शेखर बंदोपाध्याय. All right. Okay, तो पहली बुक जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है फ्रॉम प्लासे टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय. This you have to study. This will discuss the post प्लासे इंडिया. प्लासे का जो बैटल हुआ था उसके बाद भारत का क्या रूप बदला था, वो इस बुक में समझाया है. आफ्टर बैटल ऑफ प्लासे, what was India's condition? Very specifically this book has explained, and UPSC is framing questions directly from this particular book. So from Plassey to Partition by शेखर बंदोपाध्याय, you have to study this book at any cost. आपको पढ़नी ही चाहिए ये बुक. ठीक है. Then बिपिन चंद्रा की बुक, बिपिन चंद्रा, History of Modern India. History of Modern India. This is enough. Okay, and solve last 5 years previous year question paper. That is enough. बस इतना ही पढ़ना है इसके अंदर. Clear everyone? Only this much is required. सिर्फ यही required है for modern Indian history from Plassey to Partition and Bipin Chandra. Only this much and previous 5 years question paper. That is enough. ठीक है. Only 5 year. First solve these 5 year. Then you can think about. Only 5 year मत लिखो, पहले solve करके दिखाओ सारे 5 year के question paper. ठीक है. इतना भी कर पाना बहुत बड़ा अपने आप में एक achievement है.
to solve last 5 years previous year question paper na completely without skipping even one question is a very big achievement for a UPSC aspirant. Okay, so do not attach words like only. First solve these 5-year question paper, then go further back and solve the other years question paper. पहले शुरू के 5 साल के तो कंप्लीट करो, फिर पीछे जाना. ठीक है, clear? Sohail, even if you are new, do not write terms like only. Okay, because solving only 1 year question paper is tough. You all know that, you also know that. एक दिन में कर लोगे सारे questions? नहीं ना. Okay, so in one day you cannot solve one question paper, you that much everybody knows, right? So first complete 50% of the syllabus if you are a beginner. Okay, अगर beginner हो तो only word नहीं लिखोगे, syllabus का 50% complete करोगे, question paper solve करोगे. ठीक है, clear? समझ आ गई बात? How many days will you take to complete medieval Indian history? Ancient history का मैंने बता दिया 3 weeks में आप कवर कर लोगे. Ancient history 3 weeks you will required if you are a beginner. अगर आप beginner हो, if you are not a beginner, first attempt आपने दिया हुआ है, 1 attempt you have given. Okay, Naveen, if you focus in the class, you will know that I am speaking in English only. I am translating few things into Hindi for Hindi medium students. But again, lack of focus and attention can be seen, which is not an aspect of administrator, good administrator. Okay, so be focused in the class. So 3 weeks a beginner will take to complete ancient history. All right, 3 weeks a beginner. If you have given 1 attempt or 2 attempts, अगर आपने 1 या 2 attempts दिए हैं, then you will require only, you can say 1 week. सिर्फ 1 week you will require to go through all of this. If you have given 1 attempt or 2nd attempt, considering that you have focused on ancient history in GS paper 1 and prelims, but even if you have given your 1st attempt or 2nd attempt and still not have been focused on ancient history, then you will require 2 weeks to cover it. ठीक है, मान लो आपने 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, बट स्टिल आपने उन 2 अटेम्प्ट्स में भी हिस्ट्री में फोकस नहीं किया था, तो 2 हफ्ते लगेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने में. नाउ इफ यू आर अ बिगिनर, medieval history you will require 15 days to complete it because it is short. medieval history तो बहुत short है. Okay, so only 15 days you will require. The syllabus is very short, that is why I'm saying 15 days you will require. If you are a working professional or there are some circumstances, then you will take 20 days, 20 to 25 days. ठीक है, मान लो आप थोड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, 20-25 दिन आपको टोटल लगेंगे. बट इफ यू हैव गिवन फर्स्ट अटेम्प्ट, 1 अटेम्प्ट आप दे चुके हो ऑलरेडी, देन विद इन 5 to 6 days you should be in a position to complete medieval history. Okay, now comes modern Indian history. Now this will take a little time. ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें. So I am giving you 1 month's time to complete modern Indian history. 1 महीने का टाइम आपको मैं दे रही हूँ modern history complete करने का. थोड़ा सा बड़ा है, and plus to remember everything, quotations, sayings, years, you will require a little time, 1 month time. All right, clear everyone? Now for world history. World history की जब बात आती है, when we talk about world history, okay, now world history से हमारा टच काफी छूट जाता है. We are not in touch of world history, right? So for this, I will recommend reading. First book is History, Vansh Singh. This is history optional class, Vansh Singh. Okay, I hope you understand the topic of the class. History of the world. ये हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास है. मैं उम्मीद करती हूँ आप टॉपिक पढ़ सकते हो ऊपर क्लास का. ठीक है, इतना तो आपको दिख रहा होगा. Now, history of the world you have to study by Arjun Dev. By Arjun Dev. This you have to study. This is one of the finest books which you can find on history optional. ये Vansh Singh, you are not serious in the class. आप serious नहीं हो. I wonder why you students, UPSC students, you are not serious in the class. दिख रहा है तो फिर क्वेश्चन कौन से पूछ रहे हो आप? दिख रहा है अगर आपको तो कौन सा क्वेश्चन पूछा है आपने? हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास चल रही है ना, कोई और ऑप्शन कैसे इसमें बताएं? उसके लिए अलग से क्लास बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो ना तो इस तरीके के क्वेश्चंस मत पूछा करो. थोड़ा सीरियस तो रहो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. ठीक है, आपके लिए क्लासेस कंडक्ट की गई, आप आके यहाँ पर क्लासेस में सीरियसनेस नहीं दिखाते, फिर क्या फायदा हमारा पढ़ाने का? हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्जुन देव you have to study. All right, this is the one book which you have to go through if you have lost touch with world history. अगर आपने world history से touch आपका छूट गया है, right, it looks a little tricky, then history of the world, start with this book. Your basics will be cleared. आपके basic clear हो जाएंगे.
ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ देयर इज अ टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, फिर आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आता है, ठीक है? द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री. नाउ दिस इज अ क्लास 11th टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी. ये तो आपको पढ़ना ही है, यू हैव टू गो थ्रू इट, राइट? बिकॉज 90% of the time UPSC is framing questions from this. in history optional, आपके हिस्ट्री ऑप्शनल में 90% ऑफ द टाइम यूपीएससी इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाता है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री. सो दिस यू हैव टू स्टडी. ओके, यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्जुन देव. देन यू हैव टू स्टडी, मैम कौन से रीजन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? रोहन दत्ता, यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. ओके, सो दैट इज व्हाई आई कैन नॉट प्रिडिक्ट. सो आगे वरना आप मुझे ब्लेम करोगे, मैम ने तो ये बोला था, ठीक है? NCERT themes in world history class 11, 90% of the times question is coming from this particular segment of book. इस book से 90% times question बनते हैं. And then third most important static book, after going through these two books your basics will be cleared. ये दो books पढ़ने के बाद आपकी world history के basics clear हो जाएंगे. Then you can purchase world history by Krishna Reddy. ठीक है? Either you can purchase Krishna Reddy or Norman Loy. अब ये आपके ऊपर है. नॉर्मन लो इज अ बल्की बुक, ये बहुत ज्यादा हैवी और बल्की बुक है, ठीक है? यू विल रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ टाइम, अप्रोक्सीमेटली 1.5 months टू कंप्लीट दिस बुक. बट कृष्णा रेड्डी इट कैन बी कंप्लीटेड विद इन 20 days. ठीक है? ये सूर्या, द बैकग्राउंड और स्ट्रीम डज नॉट मैटर. ओके, for UPSC and optional papers background or stream does not matter when it comes to history optional, geography optional, PSIR, PubAd, etc. Okay, so either Krishna Reddy if you want to complete history, world history easily in question and answer format, or Norman Loy because it's a bulky book if you are a avid reader. अगर आप बहुत ही अच्छे आप रीडर हो एक और आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो Norman Loy लो, but it will take lot amount of time to complete. But I will recommend Krishna Reddy because world history has been explained in question and answer format in this book. Clear? इतना clear हो गया सबको? This much is clear. Now next important topic which you have to prepare in history is maps. अब आपको maps पढ़ने हैं because maps is of 50 marks. Maps आपके अकेले 50 नंबर के आएंगे, right? And the first question is on maps only. पहला question maps पे होता है, याद रखना, ठीक है? First question is on maps. So now how to prepare maps? See, whenever you are studying history, any topic, जब भी आप history पढ़ रहे हो कोई भी topic, make sure that you have a map with you. आपके पास एक empty खाली map है. Whenever you are studying history, make sure you have an empty map with you. And whatever places you are studying, Paleolithic period, Neolithic period, Mesolithic period, try to mark those sites or caves or monuments in the map. जब आप Paleolithic period पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी कोई भी पीरियड पढ़ रहे हो हिस्ट्री में, मेक श्योर यू आर मार्किंग इट इन द मैप. ओके, मेक श्योर आप मार्क कर रहे हो. बट इफ यू आर वीक इन मैपिंग, अगर मैपिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं आता, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैपिंग, देन आई विल रिकमेंड यू अ साइट. मैं आपको एक साइट रिकमेंड करूंगी, वो है सेल्फ स्टडी हिस्ट्री. दैट साइट इज सेल्फ स्टडी हिस्ट्री. दिस साइट इज स्पेशली फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल. ठीक है? सोनिका, द सेशन इज टुमारो. इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड टुमारो. 4 बजे कल शाम को सेशन होगा, ठीक है? लिंक विल बी गिवन ऑन माय टेलीग्राम चैनल. आई एम पोस्टिंग द लिंक ओवर हियर, ठीक है? तो आप नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. नाम है टेलीग्राम चैनल का सिंप्लीफाइंग यूपीएससी with ease. All right, you will be notified. Now self-study history is the website which you have to log into. Now I am giving you the link of this particular website. आप इसको लिख सकते हो और इसको एक्सेस कर सकते हो. हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए क्यूरेट की गई है. इट हैज बीन क्यूरेटेड फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल ओनली. All right, for practicing map, they will teach you how to start practicing maps. यहाँ आपको previous year question भी में भी जो maps है वो आपको करवाया जाएगा. Map work will be done on the basis of previous year question also. Okay, so you can
Go to this website, free of cost they are going to teach you to practice important maps, and trust me, 95% of the times map work in history optional is coming from this website. Okay, clear? जो मैप वर्क होता है ना, वो 95% टाइम यूपीएससी में इसी वेबसाइट से आ रहा है. All right, so go through this particular website. इस वेबसाइट को पढ़ना जरूर. So right now, which books I have told you to study? कौन से बुक्स मैंने आपको बोली है? वर्ल्ड हिस्ट्री, अर्जुन देव एंड NCERT class 11 themes in world history. First you have to study these two. Only then you have to move towards Krishna Reddy or Norman Roy. ठीक है? For modern Indian history, I have recommended Bipin Chandra and Shekhar Bandyopadhyay. Okay. For medieval history, I have recommended Satish Chandra and Upinder Singh. But if you have R.S. Sharma or if you have Poonam ma'am's book, then you can skip these two books and only IGNOU BA and MA notes you have to study. For ancient history, 6th to 12th old NCERT you have to study, IGNOU MA notes you have to study. Okay, and if you do not have R.S. Sharma or Poonam ma'am's book, then you can purchase Upinder Singh book. Okay, book written by Upinder Singh, History of Ancient and Early Medieval India. क्लियर? आई हैव टोल्ड यू द सिलेबस ऑल्सो, मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है. हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 250 मार्क्स ईच, 250 नंबर का होता है, टोटल 500 मार्क्स. पेपर 1 2 सेक्शंस एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, पेपर 2 2 सेक्शंस मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. क्लियर एवरीवन? दिस मच इज क्लियर. द बुक लिस्ट आई हैव टोल्ड यू, मैंने बुक लिस्ट बता दी. द वेबसाइट टू प्रिपेयर मैप्स फ्रॉम आई हैव टोल्ड यू कौन सी वेबसाइट है. अब आपके कोई डाउट से आप पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. नाउ द मॉक टेस्ट. नाउ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज. बच्चे पूछे इतना ज्यादा मैम याद कैसे रखेंगे सोहेल, तो फिर तो यूपीएससी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल आपको पढ़ने में इतना टफ लग रहा है, तो आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4 प्रीलिम्स कैसे पढ़ोगे? इफ यू आर फाइंडिंग हिस्ट्री ऑप्शनल टफ और हिस्ट्री ऑप्शनल वास्ट, राइट, these 4-5 books you are finding it was, how are you going to prepare for paper 1, 2, 3, 4 which have various subjects? ठीक है, फिर तो यूपीएससी छोड़ना पड़ेगा. फिर क्या, फिर तो सारे एग्जाम छोड़ दो. एवरी गवर्नमेंट एग्जाम इज टफ, दैट मीन्स ऐसे तो सारे गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, फिर दे ही क्यों रहे हो कोई भी एग्जाम? ओके, इस तरीके की मेंटालिटी रखोगे, लाइफ में कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे. इफ यू कीप दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी, यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट एनी एग्जाम इन लाइफ. Okay, you have to first change your mentality. Okay, exams are a part of everybody's life. You have to change your mentality. For 6 to 10 can be preferred gist of NCERT, Bharti. I will not recommend that. If you want to write answers, if you are going through summary, that means your analytical learning is zero. Okay, I will not recommend. मैम लास्ट ईयर में एनालिसिस करें तो किस ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या इलेक्ट्रॉनिक का वास्ट नॉलेज जरूरी है? मैम आई सोच रही हूँ क्या इलेक्ट्रॉनिक का वास्ट नॉलेज जरूरी है? सूर्या, नहीं इतना तो जरूरी नहीं है मैम. ओके, एनालिसिस करें इफ ऑप्शनल का, तो मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल. ओके, मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल इज फर्स्ट रैंक आई गिव टू ज्योग्राफी. पहला रैंक ज्योग्राफी को मिलेगा बिकॉज इट इज डायरेक्ट, कोई इधर उधर की कहानी नहीं है, डायरेक्ट है. सेकेंड आई गिव टू आफ्टर ज्योग्राफी हिस्ट्री को ही दूंगी. अगेन यू कैन नॉट चेंज हिस्ट्री, इट इज डायरेक्ट. ओके, थर्ड आई गिव टू पबैट को दूंगी. फोर्थ आई गिव टू फोर्थ में दूंगी सोशियोलॉजी को, राइट. एंड फिफ्थ आई गिव टू PSIR. आई एम ओपनिंग द क्वेश्चन विंडो, यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर इट. मैंने क्वेश्चन विंडो ओपन कर दिया है, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछो, मैं आपको आंसर करती हूँ. Question window is open. You can type your question in the question window. Yes, Sohail, you can take it for CSE also. क्वेश्चन विंडो ओपन है, वहीं पूछो क्वेश्चन. मैम लास्ट ईयर में लास्ट के किस ऑप्शन में नंबर ज्यादा मिलते हैं? जूनो, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, नंबर किसी में किसी को ज्यादा नहीं मिलते. 160 से ऊपर एक पेपर में किसी का नंबर नहीं जाता. ठीक है, आपको नंबर पे फोकस प्लीज मत करिए, इंटरेस्ट पे फोकस कीजिए. ये यूपीएससी है, कॉलेज का एग्जाम नहीं है. यू आर टेकिंग दिस एग्जाम वेरी डिफरेंटली एंड वेरी रॉन्गली. दिस इज यूपीएससी, दिस इज नॉट अ नंबर गेम. ये नंबर बेस्ड स्कोरिंग बेस्ड एग्जाम नहीं है. ठीक है, सो इन सब्जेक्ट विच यू हैव इंटरेस्ट, यू कैन pick that subject. Plus in this exam even the topper gets 55 or 54% marks.
जो टॉपर जो टैंक 1 होता है ना, उसको टोटल 54% मार्क्स मिलते हैं। तो अपनी गलतफहमी आपको दूर करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैम इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यस वरुण, हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, स्पेशली इन पेपर नंबर 2 क्वेश्चंस आर रिपीटेड आफ्टर एवरी 2 इयर्स। हर 2 साल बाद क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन है मैम, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम? हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम? बाय स्टडिंग। और कैसे करोगे? अब मैं आपको मंत्र तो नहीं बताऊंगी ना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अ मंत्र टू चांट डेली इन द मॉर्निंग 6 AM and then at the night 10 PM, right? You have to study, 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 study. Do not be distracted. Okay. Ma'am, how many days to cover world history? For world history, I will recommend you. Okay, I'll tell you that also. History. This book by Arjun Dev, you can cover it very easily in 4 days. 4 दिन में आप cover कर लोगे. Then NCERT of class 11th you can cover it in 1.5 days. 1.5 दिन में आप इसको cover कर सकते हो, और 2 days if you are a beginner. ठीक है. Then Krishna Reddy book 20 days. ये आपको 20 days लगेंगे, तो maximum 25 to 26 days you can cover world history. Okay. Please send last 10 years question paper link. Shabin Raj, 10 years question paper is available on UPSC site. Go to UPSC site. थोड़ा मेहनत करो. Which test series do you suggest for history optional? Self study history के test series are must. अगर आप ये ले लेते हो, आपकी 90% problems ही खत्म. If you take self study history की website की test series for history optional, that is enough. How, and they check also. They check the paper thoroughly. Okay. मैम हाउ मेनी डेज टू कवर वर्ल्ड हिस्ट्री? आई हैव टोल्ड यू दैट 26। मैम मेरा लॉकडाउन के बाद फाइनल एग्जाम ग्रेजुएशन, कितना टाइम सिलेबस, कितना टाइम मिनिमम देना होगा सिलेबस कंप्लीट करने में? क्या मैं अब तैयारी करना? हाँ, अभी से शुरू कर दो। 1 साल का टाइम तो लगता है यूपीएससी के आपको तैयारी में। स्पेशल टिप्स टू बी रिमेंबर व्हाइल राइटिंग एन आंसर. स्पेशल टिप्स इज always Special tips is always make sure that you divide your answer into 3 parts. Introduction of 2 to 3 lines, body of the answer which should be further divided into 3 parts. In the middle part, flowchart should be attached, and conclusion should be your positive opinion. ओके अगर इस तरीके से आंसर लिखते हो तो आपका आंसर 7 to 8 मिनट्स में आराम से कंप्लीट होगा, बट ओनली इफ यू हैव गुड कंटेंट. ओके ओके. जर्नल क्या क्वेश्चन है ये? प्लीज क्वेश्चन बॉक्स में देखो. जर्नल के लिए मैक्स एज क्या होता है? 31. अभी दोस्तों की क्यों सुनते हो जुनो? दोस्त आपके यूपीएससी के ऑफिस में काम करते हैं क्या? आर योर फ्रेंड्स वर्किंग इन यूपीएससी ऑफिस? गो टू यूपीएससी वेबसाइट ना फॉर दैट. व्हाई आर यू लिसनिंग टू योर फ्रेंड्स? इफ दे आर वर्किंग इन यूपीएससी ऑफिस देन लिसन टू देम. ओके ऐसे बचपना मत किया करो. आर एस शर्मा सफिशिएंट? यस, आर एस शर्मा इज सफिशिएंट. ओके. दीपक ने बहुत ही लेट क्लास ज्वाइन करी है. सिलेबस को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था. दीपक आपने बहुत ही लेट क्लास ज्वाइन की है. ये देखो पूरा सिलेबस यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. टॉपिक वाइज क्या है सिलेबस सब एक्सप्लेन किया है. ठीक है तो स्क्रीनशॉट ले लो. टेक अ स्क्रीनशॉट दीपक. दिस इज द स्क्रीनशॉट पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 है. स्क्रीनशॉट लो फटाफट से. टेक अ स्क्रीनशॉट. दिस इज पेज नंबर 2. टेक अ स्क्रीनशॉट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. Then this is page number 3. Take a screenshot of the syllabus. This is page number 4. Take a screenshot. This is page number 5. Take a screenshot. And this is page number 6. There are 6 pages in which I have explained the syllabus. Take a screenshot of the pages. प्रिंस कुमार झा ने और भी लेट ज्वाइन किया. कल ज्योग्राफी ऑप्शनल पे चर्चा हो गई. प्रिंस आप अनअकैडमी प्लस के स्पेशल क्लासेस पे जाइए. वहां कल की क्लास में आपको मिल जाएगा. Yesterday only we have discussed it. Okay. इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए क्लासेस अवेलेबल अनअकैडमी प्लस पे तो पता नहीं. दिस इज पेज नंबर 1. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ सिलेबस. दिस इज पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 है ये. दिस इज पेज नंबर 3. दिस इज पेज नंबर 4. दिस इज पेज नंबर 5. एंड दिस इज पेज नंबर 6. मैम क्या हर दिन फ्री रहेगा क्लास या सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही? सूर्या मैं तो स्ट्रैटेजी क्लासेस ले रही हूँ. मेरी क्लासेस स्ट्रैटेजी की फ्री है अभी.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के बाद करूं या अभी से क्या करूं, क्योंकि एग्जाम के समय गैप हो जाएगा। सूर्य एग्जाम अभी से करो ना, अभी क्या कर रहे हो, अभी से तैयारी शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। मैम शाम को कौन सी क्लास होगी, कितने बजे? शाम को कोई क्लास नहीं है, कल है क्लास। Now there is no class. Tomorrow we are having a class at 4 p.m. on how to read the Hindu newspaper. Link will be given in my Telegram channel, which I have posted or pinned in the comment section. Okay. मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल. Tomorrow we are having at 4 p.m. a class on how to read the Hindu newspaper, how to make notes from Hindu newspaper within 1 hour. 1 घंटे के अंदर अंदर आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और पढ़ना कैसे न्यूज़पेपर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और वो कैप कैसे डेवलप करनी है न्यूज़पेपर पढ़ के, वो भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी डेवलप्ड through reading the newspaper. I'm going to tell you how. Then your analytical, how to read the editorial, how to understand it, everything will be covered tomorrow at 4 p.m. Okay, join the class and also join this telegram channel of mine in order to get the notification के लिए telegram channel join कर लेना, ठीक है। चलो, on this note I guess every doubt is clear, so we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class, ठीक है।